Assalamu alaikum everyone. So basically this is the first lecture for Educate a Change free lecture series, and the focus behind this series is to cover all the syllabuses of O levels, A levels and IGCSEs in recorded presentations for the students to be accessed for free. Educate a Change also offers a lot of paid courses for O levels, A levels and IGCSEs, and in those courses you will find many other things, for example quizzes, marked assignments, where we will provide feedback on your work. Apart from that, past paper solutions, part paper solving techniques, video presentations that are much more in depth, recorded video lectures, etc. But this free series has been developed by Educator Change to make sure that every single student has access to the free courses, free part of the series as well. If you're interested in any of the paid courses, you can just go to educatorchange.com and make a purchase, and I hope that they will help you further in your studies. So today is the first lecture and we would like to mention a few things. Each of the lecture will be between 2 and 5 minutes. The main reason is that we will try to keep it short enough for the lecture to not become boring, but at the same time we would like to cover most of the syllabus in as few lectures as possible. Apart from that, you can see a few important links on the first page that includes our group LRT Education. You can just search it on Facebook, like on the Facebook search bar, just search LRT Education and join the group. That group would have write-ups included with these presentations, so you would have a better chance of understanding what is being taught. Apart from that, there's a lot of social media pages that we run. For example, Educator Change on Instagram. For Facebook, it would be Educator Change as well. For Twitter, it's Change Educate, and our YouTube channel is by our official company named LRT. The first lecture is being made on economics for O levels and IGCSE, 0455 for IGCSE and 2281 for O levels. And this first lecture would cover two important topics. The first is what is economics, basically the basis of economics and the economic problem. The lectures wouldn't be in a series, like for example, not all the lectures being uploaded for the first ones would be in economics. They would be very variable, but each lecture would have a lecture number included for the subject, so you know how it is progressing. Apart from that, you can access the classified version or the classified variations of these lectures on Educator Change website, so that would be easy for you to categorize. I'm your presenter Unancia, and for those who don't know me, I have 66 distinct A and A stars in O levels, A levels, IGCSE for Cambridge International Examinations, and for Edexcel it's GCSE and International A levels. By distinct A and A stars means that if I've taken chemistry in both O levels, A levels, and IGCSE, I would count that as 1A. Apart from that, there are 7 distinctions and there are 11 world records that we know of which have been broken in this process. So moving on to the first topic. When you talk about economics, you need to know what the resource problem is. Also, for this first lecture, we will try to use both English and Urdu, and then you people can comment on whether it's easier for you to understand the English version or the Urdu version, and we'll continue the way you like it. So basically, in economics, you need to understand that the resources that we have are finite. By finite, it means they are constricted, they are restricted, they are in a limited amount. तो अगर हम इसको उर्दू में कहना चाहें, ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है दुनिया में या जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, दे आर इन लिमिटेड अमाउंट. अच्छा, रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, बट द पॉइंट इज़ कि इन इकोनॉमिक्स हमारा फोकस रहता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे. सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. एक गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज यूज होते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए हम इनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी मोबिलिटी क्या है, वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हमारा आज का फोकस सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, और ये कि वो फिनिट है. फिनिट का मतलब ये है कि वो खत्म हो सकते हैं. अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको प्रूव करने का तरीका ये कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, अगर हम आज का मोमेंट ले लेते हैं इस पॉइंट पे, तो दुनिया में फॉर एग्जांपल गोल्ड के रिजर्व लिमिटेड है. एक पॉइंट आएगा जब गोल्ड के, अगर हम सारा गोल्ड आज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक पॉइंट आएगा जब वो रन आउट कर जाएगा. दैट वोंट बी अनलिमिटेड. ऐसा नहीं होगा गोल्ड निकलता ही रहे. सिमिलरली फॉर ऑयल, फॉर वुड, जैसे हमें पता है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का साइज कम हो रहा है. द रीजन इज दैट इट्स अ फिनिट रिसोर्स. इन द एंड इट वुड एंड अप. सो आपको ये याद रखना है कि रिसोर्सेज फिनिट है. इन इकोनॉमिक्स ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हमें पता हो कि रिसोर्सेज फिनिट है, बिकॉज इसके ऊपर सारा कुछ बेस्ड है आगे. ठीक है. The more important thing is that you need to understand resources cannot become infinite. हम resources को infinite नहीं बना सकते. The reason is that our planet or the entire universe has resources in a limited supply. जब आप उनको extract करना शुरू करेंगे, for example we get the best technology available today or the best technology to be available in the next 100 years,
और हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो दे वुड एंड अप. सो रिसोर्सेज आर फिनिट, दे आर लिमिटेड एंड दे कैन नॉट बिकम अनलिमिटेड. एट द सेम टाइम देखो, जब एक चीज़ लिमिटेड होती है ना तो उसके यूज में यू हैव टू डिसाइड, आपको चॉइस करनी पड़ती है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आई हैव 100 रुपीज़ अवेलेबल. मैं उन 100 रुपीज़ से, ये रिसोर्स नहीं है, जैसे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है और चॉइस का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 रुपीज़. अब मैं 100 रुपीज़ से, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड ईट समथिंग. आई हैव अनदर ऑप्शन वेयर आई कुड चार्ज माई फोन विद क्रेडिट एंड आई कैन कॉल समवन. अब ये दो चॉइसेस हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ अदर चॉइसेस एज वेल, लेकिन हम सिर्फ दो की बात करते हैं. सो आउट ऑफ दीज टू चॉइसेस, इफ आई डिसाइड टू चार्ज माई फोन विद क्रेडिट एंड कॉल समवन, अब ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली मैं ये डिसीजन नहीं ले रहा कि मैं उन्हीं 100 रुपये में जाके बाहर से कुछ खा लूँ. ठीक है. सो when you are using resources, there is an involvement of opportunity cost. अब opportunity cost क्या है, ये हमारे थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग उसको समझने के लिए, opportunity cost means that is the cost of a decision in terms of the next best alternative that you have left. तो आपने जो एक डिसीजन लिया है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट वो डिसीजन है जो आप छोड़ रहे हो इस डिसीजन को लेने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैंने मोबाइल में क्रेडिट चार्ज करना है, तो मैं जो नेक्स्ट बेस्ट मेरा ऑप्शन था या नेक्स्ट बेस्ट मेरी चॉइस थी वो ये था कि मैं बाहर जाके कुछ खा लूँ, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ इस डिसीजन के लिए. तो इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बाहर जाके खाना खाना. सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे पास फर्ज करो लकड़ी के 2 पीसेस हैं. ठीक है. मैं उनमें से चाहूँ तो एक पॉटरी बना सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो एक फर्ज करो टेबल बना सकता हूँ. नाउ इफ आई डिसाइड टू मेक पॉटरी, मेरा नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन था कि मैं उससे टेबल बनाता. तो जो मेरा फर्स्ट डिसीजन है टू मेक फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, मैं उनको जो यूटेंसिल्स बनाने वाला डिसीजन है उसके पीछे मैं ये टेबल बनाने का डिसीजन छोड़ रहा हूँ. सो टेबल बनाने का डिसीजन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ वुड. यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिक चीज़ समझ आती है. एक और एग्जाम्पल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास 5 आवर्स अवेलेबल है. मैं 5 आवर्स में या तो एक कोर्स बनाऊंगा एजुकेटर चेंज पे फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, या मैं 5 आवर्स में कोई 2 मूवीज़ देख लूँगा. ठीक है. अगर मैं 2 मूवीज़ देखता हूँ तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था कि मैं कोर्स बनाऊंगा. मैं कोर्स बनाने वाले डिसीजन को छोड़ रहा हूँ. सो जो मेरा डिसीजन है टू मेक द कोर्स, अगर मैं कोर्स बनाने को चॉइस करता हूँ तो जो मूवीज़ देखना है वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने मूवीज़ देखनी है तो जो कोर्स बनाना था वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा. सो बेसिकली द डिसीजन दैट आई लीव फॉर अ डिसीजन आई टेक, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. अब रिसोर्सेज लिमिटेड है. जब आप रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑब्वियसली आप उनको 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते. जब आप उनको 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते तो हमेशा उनकी यूज़ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. ये है इकोनॉमिक्स की पहली बेस. नाउ मूविंग ऑन, हम जब सेकंड पार्ट पे आते हैं तो दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए फॉर इकोनॉमिक्स इज दैट देयर आर नीड्स एंड वांट्स. इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है. ह्यूमन नीड्स जो है, दीज आर द थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग. प्लीज फॉर गॉड सेक, इट डजंट मीन द थिंग दैट यू नीड एसेंशियल फॉर लिविंग. अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझते हो, अगर आपके लिए कुछ होता है ना, हम लोग इसको यूँ समझना चाहें कि यार मेरे लिए तो मोबाइल बहुत ज़रूरी है, या फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो लैपटॉप बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट अबाउट योर चॉइस, इट्स अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर लिविंग. और वो बेसिक थिंग्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. अ ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर. बेसिकली शेल्टर, बेसिक शेल्टर एंड विदाउट बेसिक क्लोथिंग. यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इन 3 चीज़ों का, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग का जो बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल है, दैट इज व्हाट अ ह्यूमन नीड इज. इनमें अगर आप अपनी ख्वाहिशें ऐड करने लग जाओगे, दे विल बिकम वांट्स. So basically needs are the things that are essential for living. Wants are those things that are not essential for living but people would like to have. जैसे मोबाइल फोन ना भी हो तो I won't die but I would like to have a mobile phone. या if my house does not have a swimming pool, I won't die without that but I would like to have my house to have a swimming pool. So remember the fact that needs और wants में फ़र्क ये है कि needs essential है, wants essential नहीं है. wants वो चीज़ें जो आप चाह सकते हो. अब पता है इसमें यहाँ पे एक ट्रांजिशन देखो, हर नीड को आप वांट में कन्वर्ट कर सकते हो उसमें डिजायर्स ऐड करके. फॉर एग्जांपल बेसिक शेल्टर इज अ नीड. बेसिक घर रहने की जगह जो है वो एक नीड है, लेकिन उसमें जब मैं अपनी डिजायर्स ऐड करूंगा, मेरी डिजायर ये है कि उसमें स्विमिंग पूल हो, मेरी डिजायर ये है कि उसमें मेरा रूम अलग हो, मेरी डिजायर ये है कि उसमें एक जिम वाला रूम हो. तो बेसिकली दीज डिजायर्स कन्वर्ट द नीड्स इनटू वांट्स. तो इससे ये बात साबित होती है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. अच्छा, ये ना बहुत सारी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड कि यार ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड क्यों है. कई बार क्वेश्चन भी आया था कि डिस्क्राइब व्हाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड.
द फर्स्ट थिंग इज दैट ह्यूमन वांट्स डेवलप, टाइम के साथ ह्यूमन वांट्स डेवलप हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वांटेड अ बाइसाइकिल or a tricycle. When I grew up, my want developed into the fact that I need a bicycle. Then furthermore, it developed that I need a motorcycle. Now, the other thing is that human wants change as well. Human wants जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी होती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फर्स्ट वॉन्टेड अ बाइक, नाउ आई वॉन्ट अ कार. हो सकता है कल को आई वॉन्ट अ क्रूज शिप. तो मेरी सेम वॉन्ट जो है वो 3 दफा चेंज हो चुकी है. अब इशू ये है कि if you get all the humans together and write down their wants and the way they develop and the way they change, तो that's unlimited. एक अकेले इंसान की wants भी जो है वो अनलिमिटेड हो सकती हैं. आप लिखने बैठोगे तो आपके जिन में चीज़ें आती जाएंगी. 10 लोगों को भी साथ बिठा लो तो ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हो जाती हैं. अब चीज़ ये है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जिनसे आपने वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं टू फुलफिल द वॉन्ट्स. देखो, नीड्स और वॉन्ट्स को फुलफिल करते हैं हम चीज़ें बना के. जैसे अगर हमारी बेसिक नीड है फूड, तो हम एग्रीकल्चर करते हैं, फूड आता है, ठीक है. हमारी बेसिक नीड है शेल्टर, हम घर बनाते हैं, हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए, हम उससे घर बनाएंगे, दैट इज़ अ प्रोडक्ट. क्लोथिंग हमारी एक बेसिक नीड है, उसके लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हम वी विल मेक अ प्रोडक्ट दैट इज क्लोथिंग, यानी क्लोथ्स या डिफरेंट क्लोथ्स जो है वो हमारी प्रोडक्ट बन जाएंगे एंड दैट फुलफिल्स द नीड. तो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड प्रोडक्शन. अब इशू ये है कि प्रोडक्शन डिपेंड करती है रिसोर्सेज के ऊपर. सो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जिससे हमने प्रोड्यूस करना है, लेकिन प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो उसकी डिमांड अनलिमिटेड है क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. तो ये जो सिनेरियो है, दिस गिव्स राइज टू द इक्वेशन ऑफ स्कार्सिटी. हम इसको बात करते हैं आगे. तो अभी तक हमने जो भी बात की, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं. देखो, सबसे मेन बात ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? there are 4 different spectrums of social sciences जो मेन स्पेक्ट्रम्स है बेसिकली, जिसमें पॉलिटिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है, आपके साइकोलॉजी आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है. these sciences, they take a scientific approach, like these subjects, these take a scientific approach to study the society, to study humans, ठीक है. अब इकोनॉमिक्स बेसिकली करती है, इकोनॉमिक्स tends to study the institutions, the organizations, the individuals that are involved in the economic structure of the society. मुईशत किस तरह चलती है, मुईशत को क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, मुईशत है क्या, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी हम उसको स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है, और ये एक सोशल साइंस है. अब हमने अब तक जो बात की है, बेसिकली हमने पहले बात की कि रिसोर्स प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने बात की कि नीड्स और वांट्स क्या है. तो हमें याद रखना है कि यार नीड्स और वांट्स जो हैं और जो रिसोर्सेज हैं, तो डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज. हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्स स्कार्स हैं. स्कार्स का मतलब होता है दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाई है, बहुत कम सप्लाई में अवेलेबल है, बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है. तो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो इसका मतलब यह है कि इन एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सीड करेंगी. अनलिमिटेड वांट्स आर ग्रेटर देन द स्कार्स रिसोर्सेज. तो स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी इज बेसिकली the idea of wants being unlimited and the scarce resources being overwhelmed by the unlimited wants. तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो सिंपल इंग्लिश में, अगर आप सिंपल इन एग्जाम के लिए याद करना चाहो, इट वुड बी scarcity is when unlimited wants exceed the scarce resources. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि स्कार्सिटी जो है वो एवर लास्टिंग है, स्कार्सिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते. द फैक्ट दैट स्कार्सिटी विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज हमेशा कम रहेंगे, हमेशा लिमिटेड रहेंगे, और वांट्स जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी, हमेशा ज़्यादा रहेंगी. तो ये जो सिचुएशन है जब रिसोर्सेज हमेशा आपके लिमिटेड होंगे और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होंगी, यानी कि द ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, द फैक्ट दैट स्कार्सिटी विल एग्जिस्ट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, और द फैक्ट दैट स्कार्सिटी इज देयर. स्कार्सिटी अगर यानी स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, अनलिमिटेड वांट्स रिसोर्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज ज़्यादा है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन आउटकम ये होता है कि देखो, हमने पहले भी बात की कि जब आपको चीज़ कम है, आपके पास आउटपुट आपने ज़्यादा निकालना है, यानी फॉर एग्जांपल आपको रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं लेकिन आपने उससे वांट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करनी है, तो आपको चॉइस करनी पड़ती है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने उन रिसोर्सेज से कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है, कौन सी वांट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे. एज द इंटायर इकॉनमी, कोई मुल्क हो, कोई रीजन हो, सिर्फ आपका हाउस होल्ड हो, द ग्लोब हो,
there is always choice and decision involved in whether you would satisfy a certain want or you would not satisfy that want in relation to another want. कोई आप कोई और want satisfy करोगे, उस want को नहीं satisfy करोगे. This means कि economic problem के दो aspects हैं. पहला aspect ये है कि there will always be scarcity. दूसरा aspect ये है कि there will always be opportunity cost. क्योंकि जब भी choice and decision आएगा तो एक decision दूसरे का opportunity cost बनेगा. That is the basic way to put it. This is the first lecture that is ending, so there are something that we would like you to do. The first thing is that please subscribe to our YouTube channel. We are like in some days we are going to start a proper video lecture series as well on YouTube, and I will try my best to make all the lectures myself. So subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon so that you can receive all the latest notifications about the free video lectures that are being uploaded there. Apart from that, join our Facebook group. I have told you that you can search it by just typing LOT Education, because that Facebook group would have all the material, some extra material apart from these presentations for O levels, A levels, and IGCSEs, apart from other examinations as well, and that would include write-ups as well for these presentations, so you can revise things there. And if you like our presentations, then you can get access to our quizzes, our assignments, the numerous numbers of paper solving techniques, solve paper examples, different methods of tackling paper questions, extra material, and better lectures, better presentations, and recorded video lectures from our courses on educatorchange.com. So go now, register, and if you need a discount or if you need a special combo to be made for you, just text me on Facebook or just text my team on Facebook on Educator Change page or anywhere, and we will make a special combo for you that will give you a discount, that will give you a special deal, and which will make it easier for you to access the courses. Just let us know. Thank you very much.